आइए बेटा, आपका खैर मकदम है हमारे क्लास में। तो आज का टॉपिक है बेटा इनफर्टिलिटी। तो बेटा कंट्रासेप्शन हमने देखा, कंट्रासेप्शन क्या टेक्निक है, उसकी क्या मेथड्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनफर्टिलिटी क्या है। तो हम इनफर्टिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं inability of a couple to conceive even after having normal sexual intercourse for 1 year. तो इनफर्टिलिटी को हम बेटा डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द इनएबिलिटी of a couple. A couple is not able. A couple is unable. Inability of a couple to conceive even after having normal sexual intercourse for about 1 year. अगर एक कपल नॉर्मली सेक्चुअल इंटरकोर्स करते हैं ऑलमोस्ट अबाउट 1 ईयर और मोर, 1 साल या 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है कपल को, एंड दे आर हैविंग नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, फिर भी कंसीव नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी क्या है? इट इज ए रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। पहली बात याद रखिए, इट इज ए रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। जब एक कपल 1 साल गुजरने के बाद भी दे आर हैविंग नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स, but still they are not able to get pregnant, the female is not able to get pregnant, she is not able to get conceived, then we can say they are suffering from infertility. There are different reasons for infertility. याद रखिए, it is not like that. Suppose a couple has been married for a month or two. A couple has been married for a month or 2 months and they are not able to conceive and they are infertile. No. As per WHO, if a couple is married for 1 year or more and they are having normal sexual intercourse, then still they are not able to conceive, then we can say they are suffering from infertility. That means they must be having normal sexual intercourse for about a year or more. Then there are different reasons for infertility. देखा गया है बेटा, it has been seen 30% of infertility cases accounts to males. जो भी infertility के cases देखे गए हैं, statistical data suggest करता है 30% of them accounts for males, while as 50% of the total cases of infertility जो हैं females account for 50% of the total cases, while as in 20% of the cases both male as well as females are accountable. Both males and females account for 20% of the infertility cases. That means in some, when statistical data reveals, when we see the data of the couples, तो देखा गया है कुछ 30% के केसेस जो हैं उनमें males accountable होते हैं, problem lies in the males, while as in some cases males are normal, the male partner is normal, but 50% cases में देखा गया है females are suffering from one or another problem leading to infertility. और 20% केसेस में ये देखा गया है both males and females, both partners
are accountable to their infertility. Then what are the reasons for infertility? There are different reasons for infertility. Let us find out. There are some reasons for infertility in males. तो पहले causes of infertility देखते हैं. What are the causes of infertility? What are the causes of infertility? Causes of infertility. हम देखते हैं बेटा. What are the causes of infertility? पहले देखेंगे मेल्स में क्या वजूहात हैं, क्या causes हैं जिनकी वजह से मेल्स में इनफर्टिलिटी होती है. उसके बाद देखेंगे what are the causes of infertility in females. तो बेटा मेल्स में इनफर्टिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट काज जो है दैट इज ओलिगोस्पर्मिया. द चीफ काज ऑफ द इनफर्टिलिटी इन मेल्स इज ओलिगोस्पर्मिया. हमने पहले देखा है जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वहां पर हमने सीमेन एनालिसिस की है, सीमेन को स्टडी किया है कि सीमेन में कितने सुपर्म्स होने चाहिए, सुपर्म काउंट कितना होना चाहिए, और देखा गया है सबसे इंपॉर्टेंट काज जो मेल्स का है विच लीड्स टू देयर इनफर्टिलिटी इज ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया क्या है? व्हेन द सुपर्म काउंट देखा गया है कि मेल्स में कुछ मेल्स में जो सुपर्म काउंट होता है वो होता है लेस देन 20 मिलियन सुपर्म्स पर ml ऑफ सीमेन. जब सीमेन के 1 ml में 20 मिलियन सुपर्म्स से कम हो, जब when 1 ml of semen contains less than 20 million sperms, we say it is oligospermia. हमने देखा है कि 1 ml sperm में 20 मिलियन sperms से ज़्यादा होने चाहिए ताकि ये जो sperms हैं ये जाएंगे into the female reproductive tract. आपने पढ़ा है बहुत सारे sperms वेस्ट हो जाते हैं जब वो जर्नी करते हैं towards the egg in the fallopian tube. कुछ सुपर्म्स किल हो जाती है, सम आर मेटेड विद ऑब्स्टेकल्स, कुछ सुपर्म्स अपनी एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं, जल्दी ही वो नहीं पहुंच सकते, तो कुछ फॉर्चुनेट सुपर्म्स पहुंच जाती हैं एग तक. इसलिए हमने देखा है कि अ मेल शुड प्रोड्यूस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सुपर्म्स इन द सीमेन सो दैट सम सुपर्म्स आर एबल टू रीच इनटू द फैलोपियन ट्यूब. तो ये देखा गया है सबसे इंपॉर्टेंट काज जो मेल्स में इनफर्टिलिटी का है दैट इज ओलिगोस्पर्मिया. इसी तरह से बेटा दूसरा काज जो मेल्स में है किसका? इनफर्टिलिटी का, दैट इज एस्थेनोस्पर्मिया. एस्थेनोस्पर्मिया हमने स्पर्म एनालिसिस में ये पढ़ा है. देखा गया है कुछ मेल्स जो होते हैं उनका स्पर्म काउंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, एब्सोल्युटली फाइन स्पर्म काउंट होता है, लेकिन उनके जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं. तो स्पर्म्स का नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी वो इनफर्टाइल होते हैं क्योंकि उनके स्पर्म्स नॉन मोटाइल होते हैं. व्हेन मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल तो जाहिर सी बात है वो अपना जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते, वो स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकते. एज ए रिजल्ट हम कहेंगे द पर्सन विल बी इनफर्टाइल. द पर्सन विल बी इनफर्टाइल. इसी तरह से एक और काज जो है इनफर्टिलिटी का इन मेल्स दैट इज टेराटोसुपर्मिया. Teratospermia. It is also a cause of infertility in males.
यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म्स का नंबर बिल्कुल ठीक होता है, स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन स्पर्म्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफेक्टिव होते हैं। स्पर्म्स क्या होते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजिकली डिफेक्टिव। When the sperms are morphologically defective, for example, कुछ sperms होते हैं they are double headed, एक sperm के दो heads होते हैं, कुछ sperms होते हैं they are having head but their tail is not properly formed। मॉर्फोलॉजिकली जो डिफेक्टिव स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है वो स्पर्म्स किसी एग को फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं रहते हैं। तो वो मेल्स जो होंगे जो मॉर्फोलॉजिकली डिफेक्टिव स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, दे आर सफरिंग फ्रॉम टेराटोस्पर्मिया, सो दे विल बी आल्सो इनफर्टाइल। इसी तरह से एक और काज जो मेल्स में इनफर्टिलिटी का होता है वो देखा गया है कि दैट इज हाइपोगोनैडिज्म। एक और काज मेल्स में जो इनफर्टिलिटी का देखा गया है दैट इज हाइपोगोनैडिज्म। देखा गया है बेटा कुछ मेल्स में टेस्टीज का साइज, जो उनके अंदर टेस्टीज होते हैं उन टेस्टीज का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। मैलफॉर्म टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज जो होते हैं अंडर डेवलप्ड होते हैं। जब टेस्टीज अंडर डेवलप्ड होंगे, मैलफॉर्म टेस्टीज होंगे, तो क्या होता है, टेस्टीज से नॉर्मल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेंस, पर्टिकुलरली कौन सा एंड्रोजन होता है मेल्स से में जो टेस्टी से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। जब हाइपोगोनैडिज्म, हाइपो मीन्स स्मॉल, गोनैडिज्म मीन्स स्मॉल टेस्टीज, अंडर डेवलप्ड टेस्टीज, मेलफॉर्म टेस्टीज जब होंगे तो एंड्रोजेंस की लेवल, मेल सेक्स हार्मोन्स की लेवल, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन की लेवल लो होगी। जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल लो होगी तो उसका मतलब है कि वहां पर सुपरमेटोजेनेसिस नॉर्मल से नहीं होगी। सुपरमेटोजेनेसिस जो बेटा होगी वो एबनॉर्मल होगी, वो ठीक तरह से नहीं होगी, उनमें लिबिडो या सेक्सुअल डिजायर नहीं होती है। सेक्सुअल डिजायर की सेक्सुअल ड्राइव जो होता है, सेक्स ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर या जिसको हम बेटा लिबिडो कहते हैं वो नहीं होता है। एज ए रिजल्ट दे सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी। इसी तरह से तो हाइपोगोनैडिज्म मींस व्हेन देयर आर इल फॉर्म्ड, लेस डेवलप्ड मैलफॉर्म टेस्टीज, जहां पर टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होगी, एंड्रोजेंस की लेवल कम होगी, उससे क्या होगा, सुपरमेटोजेनेसिस नॉर्मली नहीं होगी, सेक्सुअल डिजायर्स नॉर्मल नहीं होगी, सेक्स ड्राइव या लिबिडो नहीं होगा, सो दे विल बी आल्सो सफरिंग फ्रॉम इनफर्टाइल। इसी तरह मेल्स में एक और काज है इनफर्टिलिटी का, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्पैडियास। हाइपोस्पैडियास, हाइपोस्पैडियास क्या है, इट इज अ रेयर काज। ये भी एक काज है बट इट इज क्वाइट रेयर, ज्यादातर नहीं होता है, बहुत ही रेयर काज है इनफर्टिलिटी का इन मेल्स में। आपको पता है हमने देखा है जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस पढ़ा है तो हमने देखा है पेनिस का जो टिप होता है उस पेनिस की टिप पर ओपनिंग होती है, वो टर्मिनल होती है जहां से सीमेन रिलीज होता है। लेकिन कुछ मेल्स में देखा गया है जो पेनिस होता है, जो पेनिस का टिप होता है, जो पेनिस का टिप होता है यहां पर ओपनिंग नहीं होती है, ओपनिंग होती है पेनिस के टिप के नीचे, यहां पर हम इसको बोलते हैं वेंट्रल ओपनिंग होती है। जनरली पेनिस, इफ यू कंसिडर दिस इज द पेनिस, यहां पर टिप होता है, यहां से सीमेन फ्लो होगा। लेकिन कुछ मेल्स में क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है पेनिस का टिप, तो यहां पर ओपनिंग होगी और यहां से सीमेन इजैकुलेट होता है। लेकिन कुछ मेल्स में ओपनिंग टर्मिनल पर नहीं होती है, वेंट्रली नीचे वाले साइड में, पेनिस के टिप के नीचे, पेनिस के टिप के वेंट्रल साइड में, मैं कहता हूं वेंट्रल ओपनिंग होती है,
जब वेंट्रल ओपनिंग होती है तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हाट हैपेंस, जो स्पर्म्स डिस्चार्ज होते हैं दे आर नॉट डिपॉजिटेड डीप इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डीपली डिपॉजिट नहीं होते हैं, और उससे क्या होता है, दे आर सुपरफिशियली डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और उसकी वजह से बहुत सारी स्पर्म्स वेस्ट हो जाती है। और देखा गया है ये भी एक काज हो सकता है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि स्पर्म्स या जो हम कह सकते हैं जब वेंट्रल ओपनिंग होगी, जब डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज आगे की तरफ डीप नहीं जाएगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, सीमेन जो होगा, सीमेन इज नॉट डिपॉजिटेड डीप इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। एज ए रिजल्ट बहुत सारी स्पर्म्स लॉस हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, नॉट डिपॉजिटेड डीप इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ये एक काज है फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का। इसी तरह से ये भी देखा गया है समटाइम्स ब्लॉक्ड डक्ट्स, मेल्स में कुछ डक्ट्स ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक्ड डक्ट्स में आल्सो काज इनफर्टिलिटी। और देखा गया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखा गया है, दोज मेल्स which are exposed to high temperatures, जिनके टेस्टीज, दोज मेल्स जहां पर जिनके टेस्टीज जो होते हैं दे आर एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर्स, वहां पर देखा गया है दे आर मोर ससेप्टेबल टू कंट्रैक्ट टू गेट सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी। देखा गया है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कांगरी, कश्मीरी पीपल जो होते हैं हम ज्यादा यूज करते हैं कांगरी, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कांगरी, कांगरी जो होती है वहां से हीट जो होती है फ्लो होती है। इफ अ पर्सन यूजेस द फायर पॉट और द कांगरी फॉर longer periods of time, तो देखा गया है इट मे आल्सो कॉज इनफर्टिलिटी बिकॉज इट मे लीड टू लो स्पर्म काउंट। बिकॉज आपको पता है सुक्रोटम जो होता है इसमें टेस्टीज होते हैं, तो नेचर क्या है, नेचर ने ऐसा सिलेक्ट किया है कि ये जो सुक्रोटम है ये बॉडी से थोड़ा सा बाहर रहता है, और जो टेस्टीज इसके अंदर होते हैं दे आर अवे फ्रॉम द बॉडी, और उनमें बॉडी टेम्परेचर से 1-2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लो रहता है। सुक्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, विच इज आइडियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। इसीलिए कहा जाता है कि हाई टेम्परेचर इज डेट्रीमेंटल फॉर द हेल्थ ऑफ स्पर्म्स। दैट इज व्हाई सुक्रोटम इज लाइंग हैंगिंग, देयर इज अ पाउच hanging on the in the perineum in males, जिसमें testes होते हैं, testes are not abdominal in males. Is that clear? So these are some important causes of infertility. तो पहले आपको याद रखना है कि what is infertility? Infertility means a condition when a couple is not able to conceive even after performing normal sexual intercourse for about a year or more. Then there are causes. Causes may be lying in males or females or in both. In 30% cases causes lie in males. In 50% cases females जो होते हैं वहाँ पर cause होता है. And in 20% cases couples में देखा गया है both are accountable. Is that clear? अब हमने यहाँ पर देखा what are the causes of infertility in males. तो बेटा इसके बाद हम देखेंगे what are the causes of infertility in females. So नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेटा causes of infertility in females. So that is all for now. وما علينا إلا البلاغ.